Good evening. Hello. Hello everyone. Yes. When you start the program? Hello. Good evening, sir. Hello. Am I audible? Yeah. Hello. Good Yeah, evening. you are audible. You are audible, sir. Okay. Now we are start. First of all, good evening to everyone. Yeah, very good evening. My name is Ravi Uchenia. Yeah. I wholeheartedly welcome our keynote speaker, Mr. Amit Kumar Sharma, who is MD as well as the owner of White Tree Devices Private Limited and also has an associative member of TIE Udaipur. In addition, I also welcome Mr. Rahul Zinger, Executive Director of TIE Udaipur, and Dr. Prashant Sharma, Principal, Access College of Engineering. Now, today, our keynote speaker, Mr. Amit Kumar Sharma, will share expert knowledge on the topic out of the box thinking for solving. Now, without taking much more time, I am giving the mic to Mr. Amit Kumar Sharma. The next voice is Mr. Amit Kumar Sharma. Sir, please. Hello everyone. My name is Amit Kumar Sharma. I'm MD White Tree Devices. I have more than 15 years of experience as an engineer, and in various roles I have worked across US, India, and in Bangalore, Noida. And I have in my entrepreneurship journey, I have started a very small
product-based company here in Udaipur. It's called White Tree Devices. And a couple of days ago, I'm very grateful to Mr. Piyush Sharma and Rahul Jinger, who approached me and gave me this opportunity to talk to the young crowd of SS Polytechnic College and Engineering. And it's my passion to talk about innovation, enterprises, and startups. So in a way, it's a very overwhelming experience for me, and I'm very grateful to Mr. Piyush Sharma, Mr. Mohammed Parvez ji, Rahul Jinger, and of course the principal, Sir Prashant Sharma ji. So allow me to share my screen here. So out of box thinking for problem solving and in context of entrepreneurship, it's a very important topic in a way that startups and new companies cannot survive without innovation, without thinking out of box. So I will switch to Hindi and English because I'm more comfortable with in my mother tongue, and even I assume that every one of you is also very comfortable with Hindi. So इसमें हमारे जो contents रहेंगे for today's talks would be that entrepreneurship and how the innovation is very important in entrepreneurship, and what kind of in this head we will discuss that what kind of enterprises are suitable for innovation. There could be enterprises which are like in a cyclical business and they don't need any kind of navachar. And then we will discuss that what is an innovative mindset, how you think out of box. रचनात्मक मानसिकता क्या है, ये क्या ये एक इंसान अपने साथ में लेके पैदा होता है, या ये कोई ऐसी स्किल है जो आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल स्टेप्स जो हम हमारे व्हाइट ट्री डिवाइसेस में फॉलो करते हैं, एंड बिकॉज वी आर बीइंग इनोवेशन हाउस, हमारे ब्रेड एंड बटर ही नई चीजें बनाना है, और इसके लिए हम हमारे यहाँ पे कुछ टेक्निक्स रहती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके अंदर एक एक्सरसाइज भी होगी जिसमें हम करके देखेंगे कि कैसे हम आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, कैसे हम इनोवेटिव सोच सकते हैं. और तो ये डिस्कशन जो है एक वन वे सरमन नहीं है, इसमें काफी कुछ हम आपस में बात भी करेंगे, और लास्ट में मैं आपको कुछ रिसोर्सेज शेयर करना चाहूँगा जो एज ए स्टार्टअप, एज ए न्यू कंपनी अगर आप फॉर्म करने जाते हैं तो आपको सरकार से और अपने दूसरी संस्थाओं से क्या मदद मिल सकती है, और कैसे आप उस ऑब्स्टेकल्स से ओवरकम करेंगे, भले ही वो फाइनेंस का, भले ही वो टेक्निकल नो हाउ का और उस तरह के. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो स्टार्टअप्स तो ब्रीडिंग ग्राउंड है इनोवेशन का, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर ही इनोवेशन रहेगा. उन्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है समाज की, देश की, और कोई एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेके आना है बाजार में अपनी आप को एस्टेब्लिश करने के लिए. तो इनका जो रहता है ये बहुत सूटेबल रहते हैं इनोवेशन के लिए, क्योंकि इनमें टीम साइज स्मॉल रहता है, तो मल्टीपल हेड्स नहीं रहते हैं जो बीयू हेड्स जिनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनका एग्रीमेंट लेना मुश्किल होता है बड़े एंटरप्राइजेस के लिए. यूजुअली हम देखते हैं कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें कोई भी नई चीज लाने के लिए आपको बहुत लोगों को एग्रीमेंट में लाना पड़ेगा. वो प्रॉब्लम स्टार्टअप के साथ नहीं होती है. वहाँ पे यूजुअली एक हेड होता है, एक आदमी होता है जिसकी सब चल रही होती है, या फिर कुछ दोस्त होते हैं जो अपने सलाह करके आसानी से नई चीजें अडॉप्ट कर पाते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी जगह रहती है अगर कुछ
आउट ऑफ बॉक्स करना है, कुछ नया करना है, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग लेकर आना है, तो भले ही आपकी बहुत बड़ी फॉर्म हो, पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक छोटी फॉर्म 2-4 एक्सपर्ट के साथ में बनाएं और वहीं से शुरू करें। वो इसका एक और फायदा ये रहता है कि इनका कस्टमर बेस स्मॉल होगा, तो आपका कहीं अगर कुछ थिंग्स गो साउथ, इफ अगर चीजें बिगड़ जाती हैं तो भी ज्यादा आपका गुडविल खराब नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्मॉल स्टार्टअप है जिसे कोई नहीं पहचानता। इसके बाद में जो स्टार्टअप रहते हैं वो एक छोटे से डेमोग्राफी में, एक छोटे से शहर में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर पाते हैं, फिर वो बाद में स्केल होकर जो है बड़े सेगमेंट्स में जाते हैं। तो इस तरह से रहता है स्टार्टअप्स के लिए। और अभी रिसेंटली हमने इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स पैदा किए हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए, जिसमें आपने 100 कंपनियां ऐसी हैं जिनका मार्केट वैल्यूएशन 7,500 करोड़ से ज्यादा है। तो ये एक इस चीज को दर्शाता है कि हम भारत में काफी कुछ ऐसा हो रहा है सरकार की तरफ से, और इवन इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज और बहुत सारी संस्थाएं इस चीज को समझी हैं और इस चीज में काफी काम हो रहा है, जिससे इतने सारे यूनिकॉर्न्स तैयार हो रहे हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है बिजनेस के लिए आज की डेट में। ये 2 चार्ट जो दिखा रहे हैं, ये बहुत सारी स्टार्टअप्स ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 डेकेड किस तरह से हमने स्टार्टअप्स बनाए हैं। अब मैं अगली स्लाइड पे आऊंगा, जस्ट आई वांट टू स्टे विद द कंटेक्स्ट कि हम इनोवेटिव कैसे सोचेंगे, और कोई भी हमारे सामने अगर हम स्टार्टअप बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कैसे हम आउट ऑफ बॉक्स सोच के किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऐसे एस्टेब्लिश करें कि जो है हम बाजार में अच्छा कर पाए। तो बात करते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की। ये व्हाट इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, व्हाट इज इनोवेटिव माइंडसेट, व्हाट इज इनोवेटिव थिंकिंग, एंड इसको एक्सप्लेन करना ये एक मानसिकता है, एक सोचने का तरीका है। इसको समझाने के लिए जो राइट हैंड साइड में इमेज है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि बॉक्स क्या है और आउट ऑफ बॉक्स क्या है। इसमें देखिए कि अपनी सैलरी, अपना कार, मेरी दौलत, मेरी खूबसूरत बीवी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये तो सभी सोचते हैं, है ना। बॉक्स, ये एक बॉक्स है, ये आपके दिमाग को कंस्ट्रेंट कर रहा है, ये आपको एक, इसने दीवारें खड़ी कर दी है जिससे आप बाहर निकल के सोच नहीं पा रहे हैं। जस्ट एन एग्जांपल, इट्स नॉट दैट यू विल, ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। हम इसमें इस इमेज से हम बॉक्स को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कैसे मानसिकता जो है संकीर्ण हो जाती है और हम उन दीवारों को पहचान नहीं पाते हैं जिसके अंदर हम अपनी सोच को संकुचित कर रहे हैं। तो अपनी गाड़ी, अपना बंगला, मेरा घर, मेरी सैलरी, मेरा प्रमोशन, ये हमने सोच लिया। इस डब्बे से बाहर निकल के एक बड़े डब्बे में आए तो हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो मेरा परिवार, मेरे फलाना साहब जो हैं उनको कहीं नौकरी लगवा दूं, या उसका कहीं उसके लिए कोई रेफरेंस ढूंढ लूं, उसको बिजनेस में कुछ मदद कर दूं, या किसी की शादी ब्याह में कहीं पैसे दे दूं। तो वो उस तरह से सोचना जो होता है वो फैमिली के बारे में सोचना है। उस लेवल से आप ऊपर आते हैं तो आप सोचते हैं कम्युनिटी के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में। हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा गुजर गुरु ब्राह्मण समाज, या मेरा सेन समाज, या मेरा जैन समाज, और इसके लिए हम कुछ करें, मंदिर के लिए कुछ करें, और हमारे समाज के लोगों के लिए कुछ करें, और कहीं पूजा अर्चना करवा दी, और कुछ दान दक्षिणा करी, कहीं भंडारा किया। इस तरह के काम जब करते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ माइंडसेट आया है, एक इंसान जो है एक नए लेवल पे आके सोचने लगा है। उसके ऊपर जब आता है इंसान तो वो सोचता है देश के बारे में, कि देश के लिए फौज में जाके
बॉर्डर पे लड़ रहे हैं या फिर पॉलिटिशियन बन रहे हैं और नेशनल लेवल की संस्थाएं बना रहे हैं और नेशनल लेवल के काम कर रहे हैं। तो ये एक और विकसित सोच है जिसमें इंसान खान साहब आप मेरे बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो जब आप नेशनल लेवल पर सोचते हैं तो एक और आप एक बड़े बॉक्स में आ गए। कुल मिला के तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बड़े बॉक्स में आ गए, क्योंकि देश से बड़ी चीजें हैं। जब आप व्यापार करते हो तो आप देश के बारे में नहीं सोचते, आप इंसानियत के बारे में सोचते हो। आप यू वांट टू स्केल बियॉन्ड द डेमोग्राफी ऑफ द कंट्री। आप जब बिजनेस करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि मैं सब पूरे विश्व में मेरा व्यापार फैले, तो मैं इस बाउंड्री से भी बाहर निकलूं। उसके ऊपर आता है, जैसे मैं प्रकृति के बारे में सोचता हूँ, मैं एज ए सब इंसानों के बारे में सोचता हूँ, मैं पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हम अपनी पृथ्वी जो है हमारे नेक्स्ट जनरेशन या उसके 3 जनरेशन बाद को हम क्या दे के जाएंगे। क्या हम उन्हें एक बहुत ही पॉल्यूटेड और बहुत ही गंदा अर्थ देके जाएंगे, या हम उनको एक साफ सुथरा अच्छा एनवायरनमेंट देके जाएंगे। और हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, क्या हम आपस में कास्ट, क्रीड, मजहब और देश, रंग भेद इसके लिए लड़ेंगे या हम नहीं लड़ेंगे, राइट। तो उस तरह की सोच जब विकसित होती है तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे, इसके ऊपर भी एक है, वो है टोटल एनलाइटमेंट, जहाँ आप रियल और अनरियल के बारे में सोचते हो, जहाँ बिल्कुल ही जाके हिमालय पर तपस्या करने लग जाते हो कि जगत मिथ्या है और मैं तो जो है ईश्वर के साथ ही साक्षात्कार करना है मुझे, और उस लेवल के माइंडसेट पे पहुंच जाते हैं। तो हम छोटे बॉक्स में रहेंगे, है ना। हमारा कस्टमर, हमारा जो वैल्यू प्रोडक्ट है, हमारा जो वैल्यू एडिशन है, उसमें हमें क्या बाउंड्रीज आ रही है। तो हमारा डब्बा थोड़ा छोटा है, ये बहुत बड़े बड़े डब्बे मैंने दिखा दिया आपको। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए सबसे पहली जरूरत है कि दीवारों को पहचानना, है ना। वंस एक बार आपने अपनी लिमिटेशंस को पहचान लिया और उसको एक नाम दे दिया, तो आप उसके लिए रास्ते निकाल पाओगे, राइट। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, ये सोचने वाली बातें हैं। इसको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या कोई टूल से हम नहीं समझा सकते, पर ये एक तरह की मानसिकता है, एक तरह से सोचने का तरीका है कि आप अपनी लिमिटेशंस को और अपने, ना सिर्फ अपनी लिमिटेशंस को, जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में दूसरे एक्टर्स हैं उनकी लिमिटेशंस को समझिए, कस्टमर फोकस रखिए और उन कंस्टेंट्स को, उन लिमिटेशंस को एक नाम दीजिए। तो और फिर तो उसके बाद में आप ये सोच पाओगे कि हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे, हम क्या टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जिससे हम उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमर नहीं सोचना है, उसका पूरा इकोसिस्टम, उसका पूरा एनवायरनमेंट सोचना है, बाउंड्रीज के बियॉन्ड सोचना है। एक सेल के बारे में नहीं सोचना है, आपको एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ पे वो कस्टमर भी आगे अपनी सर्विसेज कैसे देता है, उसके इस सर्विस के अलावा आप उसको और कैसे मदद कर सकते हो, उस तरह से सोचना है। इसमें दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो आती है कि आपके आसपास क्या बदल रहा है, ठीक है। तो व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ चेंज, कि आपके, हम पिछले 10 साल में देखें तो काफी कुछ हमको बदलता हुआ दिखता है। तो आपके एनवायरनमेंट में, आपके कस्टमर्स के एनवायरनमेंट में, या जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर जाना चाह रहे हो, उस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का क्या हाथ है, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल रहता है कि अभी जैसे इंटरनेट आ गया है, तो वो उसने एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लाया है। तो आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को कैसे यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आजकल अभी आप देखें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत महंगी होती थी, आजकल माइक्रो कंट्रोलर मेरे ख्याल से
नितिन जी अगर हो तो बता देंगे कि 100-150 रुपए में भी एक अच्छा पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर आ जाता है ना। और हमें तो शायद डिस्प्ले के ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, माइक्रो कंट्रोलर्स पे कम। तो माइक्रो कंट्रोलर सस्ते हो गए, पावरफुल हो गए, और मशीन विजन पे काफी काम हो रहा है, और काफी काम हो रहा है। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स आ गए हैं, जो कंप्यूटर आप 70,000 रुपए का लेते थे, वही काम एक 5,000 रुपए का सिंगल बोर्ड कंप्यूटर भी कर पाएगा। तो काफी कुछ परिवर्तन आ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको जब आप अपने वॉल्स कंस्ट्रेंट्स जब आप डिफाइन करते हैं। तो इन परिवर्तनों को देखना पड़ेगा, उनको इन कॉन्टेक्स्ट में रख के आप ये सोचेंगे कि हम इन दीवारों के बियॉन्ड क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, क्या सर्विस दे सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात ये होती है कि टेक्नोलॉजी जो एक बहुत बड़ा हवा है, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा है कि कहने को मिलता है कि क्या ये हमें रिप्लेस कर देगी, और क्या हम एक दिन मशीनें हमको ओवर पावर कर जाएंगी, क्या हम पीछे रह जाएंगे, मशीनें आगे निकल जाएंगी। तो इसमें हवा में मत आइए, बड़ी बड़ी बातें बहुत बताते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, और टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आती है उसी स्पीड से चली भी जाती है। एआई को अगर लें तो ये 50 साल से है ना, और इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं आया। अगर आप पेटेंट्स देखें फाइल्ड ऑन एआई कि पिछले 15 साल में क्या नए नवाचार, क्या नए पेटेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फाइल हुए हैं, तो इतने नहीं हुए होंगे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स में हुए। ठीक है, तो पर काम तो बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो भी एआई के सॉफ्टवेयर चला पाते हैं, वो भी पावरफुल हो गए हैं, और लोगों में विजिबिलिटी ज्यादा आ गई। और तीसरी चीज ये हुई कि अब सिंपल हो गया है, चीजें बहुत सहज हो गई हैं। एआई बच्चे भी जो है वो मशीन विजन में फेस आइडेंटिफिकेशन और ये सब कर पाते हैं। तो 7वीं क्लास का बच्चा भी थोड़ी बहुत पाइथन सीख के जो है एआई मशीन लर्निंग कुछ ना कुछ तो कर ही देता है। सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, इंटरनेट के आने की वजह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व मिल जाते हैं, तो आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। पर इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस स्पीड से आती है उसी स्पीड से गायब हो जाती है। तो आपको यू हैव टू अडॉप्ट ओनली द विनिंग टेक्नोलॉजीज। ये एक गैम्बल है, ये एक जुआ है। ठीक है, तो ये तजुर्बे से आएगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्योंकि जिसने 15 साल देखे हैं, 20 साल देखे हैं, जो रहा है बाजार में, उसको पता है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें आई थी और चली गई, पर ये भी चला जाएगा। पर किस किस कहाँ आपको अपना समय और अपने रिसोर्सेज लगाने हैं, वो टेक्नोलॉजीज जो है, मेरी राय में आपको यू विल हैव टू किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, है ना। तो गूगल करके मत जाइए, किसी एक्सपर्ट के साथ में रहना हमेशा लाभदायक रहेगा। तो वो हर बार मैं हर जगह में ये आप ये बार बार सुनेंगे कि एक्सपर्ट्स को रखिए साथ में, और सिर्फ एक्सपर्ट्स को रखिए, एक्सपर्ट्स के अलावा काम मत करिए। क्योंकि एज ए स्टार्टअप, एज ए न्यू कंपनी, ऐसे भले ही आपकी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, भले ही आपकी छोटा सा ट्रेडिंग का काम है, या फिर आपका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फार्म हाउस है, अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो काफी संभावनाएं हैं कि आपको बहुत तरह के लोग अप्रोच करेंगे, और आप गलत चीजों में उलझ सकते हो अगर आपने एक्सपर्ट्स नहीं रखे अपने साथ में। तो और ये बात तो, ये एक्सपर्ट्स के बारे में मैं काफी बार बार बोलूंगा। एक्सपर्ट न सिर्फ टेक्नोलॉजी का होता है, इवन फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा एक पुराना आदमी, एक पुराना एक्सपर्ट, रियल स्टेट, आपको कहाँ अपनी कंपनी का सेटअप करना है, रेंट पे लेना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है, रियल एस्टेट हो गया, तो भी एक अच्छा आदमी जो है वो रखना चाहिए हमेशा। एक्सपर्ट, हर डोमेन का एक एक्सपर्ट इंसान के साथ होना चाहिए, है ना। उसमें अकाउंटेंट हो गया, रियल एस्टेट वाला हो गया, लीगल वाला हो गया, टेक्नोलॉजी वाला हो गया, और एक फाइनेंस वाला हो गया जो आपको पैसा लेके आ सकता है। और इन लोगों के साथ जो है आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और हम आई एम वेरी लकी दैट वी हैव बीन
with TIE Udaipur, and they have like a उनके पास बहुत तरह के बिजनेसमैन भी हैं और हर टेक डोमेन का एक्सपर्ट हमारे पास में है। तो इन दैट वे मैं ये कहूँगा कि मैं जो यूएस से आया था तो मेरे अंदर काफ़ी सोच थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर टाई से जुड़ने के बाद में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे में आया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और एक्सपर्ट्स के अलावा हमारी सोच जो है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एक मानसिकता है, हमें हमेशा लोगों को साथ लेकर जुड़कर और एक नवाचार की तरफ जाना चाहिए जिसमें हम सबके लिए वैल्यू क्रिएट करें। इसका सीधा सा एग्जांपल होता है कि जैसे जितने लोग, लक्ष्मी चंचल है, जितने लोगों की जेब में जाएगी आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग होगा, राइट। आप जितने लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ेंगे और जितना मनी रोटेशन होगा, मेरा ये मानना है कि उतना आप सॉलिड फाउंडेशन पे खड़े होंगे और वो जो नेटवर्क है वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। इसलिए इसी पर्सपेक्टिव में मैं एक और चीज कहेंगे कि ऑलवेज आपको हमेशा बिग पिक्चर देखनी चाहिए, बड़ा पिक्चर देखना चाहिए कि मैं सिर्फ एक कस्टमर नहीं, एक सेल नहीं, एक इकोसिस्टम, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, उस तरह से सोचूं जिसमें सबको साथ लेकर और सबके साथ में चलते हुए जो है हम सब मिलकर कमाएं, राइट। इस तरह से की सोच रखने के लिए ये इस तरह की सोच जो है मेरी मानने में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, मतलब एक इनोवेटिव थिंकिंग है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा पैसे को पकड़ के चलो, फॉलो द मनी, फॉलो द मनी ट्रेल, कि पैसा किन किन जेबों में जा रहा है, उसको अपने ध्यान में रखते हुए अगर अपना प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन अगर हम डिवाइस करेंगे तो अच्छे चांसेस हैं कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन, एक अच्छे ग्राउंड पे खड़े होंगे और आपका चीज जो है वो लोगों को एकदम से पसंद आएगी क्योंकि आपने पैसे को शुरू से ध्यान रखा है। ओके, ये ओके। अच्छा, जब मैं पैसे की बात करता हूं तो हम आगे सीखेंगे कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में हम कैसे हमारी टेक्नोलॉजी में पैसे से एक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उससे हम वैल्यू एडिशन करते हैं। पर इसमें एक बात मैं ये कहूँगा कि व्हेन आई से फॉलो द मनी, इट मीन्स दैट थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉकेट्स, राइट। ऑलवेज थिंक, ये बात आपको बहुत सारे गुरुज फाइनेंस के और बिजनेस वाले बहुत लोग यही कहेंगे कि हमेशा जेब देखो कि पैसा किस जेब से किस जेब में जा रहा है। और बहुत बार क्या होता है कि एक आदमी की 3-4 जेबें होती है, ठीक है, तो अगर उसकी इस जेब से जा रहा है और उस जेब में आ रहा है तो वो एक अच्छा सोल्यूशन है। I mean, that would be kind of a solution would be acceptable to all the parties. तो हमेशा पॉकेट्स बनाइए और नोड बनाइए कि एक नोड की मल्टीपल पॉकेट्स हो सकती है और पैसा उसमें कैसे फ्लो कर रहा है और वैल्यू किस तरह से आप क्रिएट कर रहे हो। तो सिंपल टर्म्स में सोचता हूँ, मारवाड़ी आदमी हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए नवाचार वाले मानसिकता की क्या विशेषता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये इंसान इनोवेटिव है, क्योंकि ये एक हर आदमी का काम नहीं है, जिसका काम उसी को साझे। अगर आप इनोवेटिव नहीं सोच पाते हैं तो प्लीज हायर एन एक्सपर्ट, है ना, तो वो काम छोड़ दीजिए। इनोवेटिव माइंडसेट का इंसान हमेशा देने में विश्वास रखेगा। ही नोज दैट अगर आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहले देना पड़ेगा,
राइट? यू हैव टू, आप बीज बोएंगे तभी तो पौधा बनेगा। तो इस चीज को समझने के लिए, समझने वाला इंसान ही मेरे ख्याल से एक इनोवेटिव है। आप बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े जो भी प्रसिद्ध बिजनेसमैन रहे हैं और जो भी R&D में इन्वेंटर्स रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो ज्ञान देंगे, है ना? वो अपना ज्ञान देते हैं और वो फ्री में देते हैं, ठीक है? और मैं भी बोल रहा हूँ ना आपके सामने, अपना समय दे रहा हूँ। तो देयर इज अ ह्यूज पावर इन गिविंग। मतलब अगर आप देंगे तो ही आपको भर भर के आएगा। अगर आप एक दोगे तो आपको 100 आएगा। जस्ट बाय हैविंग दिस मीटिंग आई हैव लाइक मैनी लीड्स, राइट? मैनी लीड्स इन फॉर माय बिजनेस। तो मैंने अपना समय दिया और तो मुझे भी बहुत सारा बिजनेस आया। तो इस तरह से चलता है ना? और ये प्रकृति का नियम है। इसमें कुछ भी नवाचार नहीं है, इसमें कुछ भी इनोवेटिव नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो एक तो देने की मानसिकता रखिए, और दूसरा ये कि आप अंदर से लीडर हैं या आप फॉलोअर हैं, ठीक है? आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, ठीक है? और आपको न सिर्फ अपना परिवार संभालना है, और आप स्टार्टअप में है तो आपको अपना परिवार तो वो तो गौण हो गया, पर आपको जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके परिवार की भी चिंता करनी पड़ेगी, है ना? तो हरी बीमारी, छुट्टी, सब जो है वो आपको देखना पड़ेगा। एक 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 मिनट लूंगा मैं, 1 मिनट लूंगा। हाँ, तो अगर नवाचार वाली मानसिकता नहीं है तो प्लीज लिव इट टू एक्सपर्ट्स। आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करेंगे, आप उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं, UCCI जैसी, जहाँ पे आपको काफी ऐसे लोग मिलेंगे जो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, जो आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को, आपके आइडियाज को अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं और आपको रास्ते दिखा सकते हैं। तो उनकी मदद लीजिए, है ना? और काफी संस्थाएं हैं, उदयपुर में भी हैं। नवाचार वाले माइंडसेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो अच्छी तरह से टेस्ट हो जाएगी उसकी, जैसे ही वो बिजनेस में, व्यापार में उतरता है, पहले पहले 1-1.5 साल में ही, वो है बायोन्सी। ये क्या वाला है? बायोन्सी मीन्स कि आपका काटा पेटा कितना है, आप कितनी तूफानों को झेल कर भी तैर सकते हो। बायोन्सी इज दैट स्टेज मेक्स यू स्टे अफ्लोट, जो आपको पानी के ऊपर रखेगा, डूबने नहीं देगा। बायोन्सी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी कुछ सुनने को मिलेगा, काफी कुछ नेगेटिविटी आएगी, है ना? लोग आपको आपकी बात पे तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप नया कर रहे हो। अगर आप लीक पर ही चल रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? जैसे ही आप लीक से हटोगे तो काफी रेजिस्टेंस आएगा लोगों का, और सबका फीडबैक आएगा। डब्बे के अंदर सेफ है, डब्बे के बाहर बहुत रिस्क है ना? तो आपका रेपुटेशन, आपका पैसा, आपका सब कुछ दांव पे लगेगा। अगर ये नहीं है तो प्लीज एक्सपर्ट को देखिए। अगली चीज चाहिए होती है आई फॉर डिटेल। ये है कि लुकिंग बियॉन्ड ऑब्वियस, जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड देखना, है ना? और ये तजुर्बे से ही आता है। जिन्होंने ये जो है धक्के खाकर ही इंसान संभल के चलना सीखता है, उस तरह की चीज है। और पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इफ यू ट्रूली बिलीव इन क्रिएटिंग वैल्यू, तो आप एक अच्छे नजरिए से भी देखोगे कि मैं इसके
जो जिस तकलीफ के लिए, एक तकलीफ के अलावा और क्या क्या इसके लिए कर सकता हूँ, है ना। तो हमेशा ज्यादा देने की मानसिकता रखिए, तो इनोवेटिव माइंडसेट अपने आप आएगा। इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि ये सब होने के बाद भी आप अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट को अगर बनाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पटरी से उतार सकती है। वो ये है कि अगर आपको आपके टीम में एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन। इससे पहले मैं एक बार वापस पिछली स्लाइड पे जाना चाहता हूँ, एक चीज मैं मिस कर गया। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि आइडिया जो होता है वो कैसे ट्रेवल करता है। आज मेरे दिमाग में एक आइडिया, हम कहते रहते हैं कि भैया हम जो है ये जो फेसबुक जो ग्लास लाया है, इसका आइडिया तो मुझे 5 साल पहले आ गया था, है ना। और मैं तो इसको बायोनिक आई कहता था। मैं ये वास्तविकता है, मतलब मेरे एक दोस्त ने मेरे को बरसों पहले कहा था कि एक बायोनिक आई बनाते हैं जिसमें वो देख के बता देगा कि इसमें फ्रूट्स में कितना विटामिन है, और या ये सड़ा हुआ है या नहीं है, ये फलाना बहुत तरह की चीजें हम कर पाएंगे सिर्फ उस बायोनिक आई से। पर वो 5 साल पुराने बच्चे थे। 5 साल तो मैं कम बता रहा हूँ, मैं ये तो कम से कम 20 साल पुराने, जब हम पढ़ते होंगे तब की बात बता रहा हूँ, 20 साल। बहुत जल्दी मैं बूढ़ा हो गया। तो 20 साल पुरानी बात है, उसने बायोनिक आई का डिस्कशन कर रहा था, पर फेसबुक गूगल अब लेकर आए हैं। तो आइडिया ट्रेवल करता है ना। हम एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता है और वो फैलता जाता है, और ये अच्छी बात है ना। हमें अपने आइडिया शेयर करने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा आइडिया जो है ऐसे दिमाग में जाके बैठेगा जो उसको कुछ कर पाएगा, उसके कुछ बना पाएगा। तो ऑलवेज शेयर योर आइडिया। तो ये चुराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बना तो सकते हो, तो उसको पेटेंट कराइए, उसको ट्रेडमार्क कराइए, कॉपीराइट कराइए। पर अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो शेयर जरूर करिए, है ना। देयर इज अ ह्यूज पावर। ठीक है। तो इस तरह से आइडिया एक दूसरे को हम कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो हमारे दिमाग में आइडियाज प्लांट होते रहते हैं। Excuse me, sir. हाँ, ये मीटिंग एक्सटेंड होगी। हाँ, बताइए सर। Excuse me, sir.